A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to another very interesting class of biology that is about muscles and movement. And we will start our lecture with the definition of muscles, definition of origin and insertion, antagonism, antagonistic behavior with an example, biceps and triceps muscles, disorders of skeletal system, osteoporosis and arthritis with its types. Now let's start with the skeletal muscles. क्या है skeletal muscles? The muscles that are attached to skeleton are called skeletal muscles. The movement in the bones are brought about by contraction of skeletal muscles. Different bones, they cannot move, but they can only move due to the muscles attached to the skeleton. And the skeletal muscles are attached with the bones with the strong bands of connective tissues और उन्हें हम क्या कहते हैं tendons. ठीक है. So we can sum up this definition of skeletal muscles. The muscles attached to skeleton, they fatigue more. ये थक जाते हैं more rapidly than other muscles, like your heart muscles which beat throughout your life और वो थकते नहीं हैं. But your muscles, ये जहाँ पे muscles में बहुत फटीक आई, दैट इज ड्यू टू द accumulation of lactic acid. हमने चैप्टर 7 में देखा था कि why do muscles fatigue due to the accumulation of, और accumulation means इकट्ठा होना, lactic acid का इकट्ठा होना muscles में due to the movement of these skeletal muscles. And these muscles also help in the voluntary movement. क्या voluntary movement means the movement which comes under your will. whenever you want to move, जब आप चाहें movement करना तो ये muscles movement में help out करते हैं. Another phenomena that are attached to skeletal muscles are origin and insertion. अब एक muscles के दो ends होते हैं. One end of skeletal muscle attached to some immovable bone. ठीक है, अब diagram में देखें. So one end is attached to the immovable part, immovable bone, and that is called origin, जहाँ से originate होता है. And other is another point is insertion point, and this point at this end the muscles attached to the movable bones, and this is called insertion. ठीक है. तो एक मसल्स के दो एंड्स हैं, एक को हम कहते हैं ओरिजिन और एक को हम कहते हैं इंसर्शन. ओरिजिन इज द पॉइंट in which muscles are attached to some immovable bone, and this end is called origin, or other end of muscle that is attached with movable bone and is called insertion. ठीक है. अच्छा जी, whenever a muscle is stimulated by nerve impulse, it contracts to become shorter and thicker. मूवमेंट में आप देख रहे हैं कि जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है, जैसे ही मसल्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है, द मसल्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर. ठीक है. अब आप इसमें देखें, these are the bicep muscles, they become shorter and thicker, और जैसे एक्सटेंड करेंगे they comes to the normal position. ठीक है. ये क्या हम नॉर्मल पे आ गए. So this contraction actually pulls the movable bone at insertion point. ठीक है जी. अच्छा, जब हम एक और फिनोमेना देखते हैं, एंटागनिज्म क्या है, कि द मसल्स दे वर्क्स इन अ पेयर, और वो पेयर क्या होते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. Like biceps moves, then triceps moves. Biceps moves, then triceps move. Bicep contracts, tricep relax. When tricep contracts, bicep relaxes. और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एंटागनिज्म. और इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, एंटागनिस्टिक मसल्स. ठीक है. So the phenomena in which both muscles do opposite job. एक बेंड करता है, दूसरा उसको रिलैक्स करता है. So when one muscle contracts, the other relaxes. When the other relaxes, the first one relax. When other contract, the first one relaxes, and this phenomena is called antagonism. Or all the skeletal muscles, they work in pairs of antagonists. ठीक है. So biceps and triceps, they work as an antagonistic pair. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स क्या है. अभी आपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का जिक्र सुना. सो फ्लेक्सर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. और कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
बाइसेप्स। ठीक है, डायग्राम में आपने देखा कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बाइसेप्स। सो ये बाइसेप्स दे हेल्प इन द बेंडिंग ऑफ आर्म, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सियन। ठीक है, इस फिनोमिना को हमने क्या कहा था, फ्लेक्सियन। सो बेंडिंग ऑफ आर्म कैरिड आउट बाय द बाइसेप्स मसल्स, और बाइसेप्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर मसल्स, और ट्राइसेप्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसर मसल्स। सो ये बाइसेप्स कहाँ पे है, ऑन द फ्रंट ऑफ आर्म, ट्राइसेप्स कहाँ पे है, ऑन द बैक ऑफ आर्म। When bicep contract, जब biceps ने bending of arm में क्या होता है, the bicep become shorter and thicker, and the so biceps को हम कहते हैं flexor muscles, और triceps को हम कहते हैं extensor muscles. These triceps carried out the movement of, that is the straighten of arm. ठीक है, तो इस एक फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। बेंडिंग मीन्स बेंडिंग को हम फ्लेक्सर्स फ्लेक्सियन कहते हैं, एंड स्ट्रेटन ऑफ आर्म इज द एक्सटेंशन। ठीक है, और इन मसल्स को, बाइसेप्स को फ्लेक्सर मसल्स एंड ट्राइसेप्स को एक्सटेंसर मसल्स कहते हैं। अच्छा जी, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के भी हमने डायग्राम तो देख लिया, अब एकदम थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या हैं। अच्छा जी, बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ अपर आर्म, on the front of upper arm. Tricep is an extensor muscle, and this muscle is present at the back of arm. Both muscles have origin in the pectoral girdle. Pectoral girdle means shoulder girdle. जो शोल्डर की चौड़ी हड्डी होती है ना, आप शोल्डर में जो सबसे द बोन विच इज मोर ब्रॉडर, ये देखें आप जिसको हम, ये आपने देख रहे हैं, दे बोथ हैव ओरिजिन इन द पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल है, ये पेक्टोरल गर्डल है। सो दोनों मसल्स का ओरिजिन कहाँ पे है, पेक्टोरल गर्डल में। सो एन इंसर्शन एट वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म, और कौन कौन से हैं आप देखेंगे, इसकी दो, हमारे फोर आर्म्स की दो बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना इनको कहते हैं। सो एक मसल्स का इंसर्शन रेडियस में होता है और एक मसल का इंसर्शन अल्ना में होता है। ठीक है, सो ओरिजिन दोनों का एक है, और ओरिजिन क्या है, पेक्टोरल गर्डल। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, पेक्टोरल गर्डल में, और इंसर्ट कहाँ पे होते हैं, अगर बेंडिंग करनी है तो एक बोन में, और अगर स्ट्रेटन रिलैक्सेशन करना है तो एक और बोन। ठीक है, इजी है ना बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का। अब देखते हैं कि बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हाउ दे वर्क। अभी तक मैंने हम थोड़ा बहुत तो ये देख लिया था, अब हम इनको देखते हैं कि हाउ दे वर्क। अच्छा, ये भी हमने देखा था कि बाइसेप्स में क्या होता है, ड्यूरिंग बेंडिंग द बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स, दे बिकम शॉर्टर एंड थिकर, और ये पुल करते हैं बोन को। कौन सी बोन को, अब यहाँ पे बोन को देख रहे हैं, इस बोन को पुल कर रहे हैं टू कॉज द बेंडिंग ऑफ दिस जॉइंट, एल्बो जॉइंट में बेंडिंग करने के लिए। सो दिस बाइसेप्स मसल्स दे हेल्प टू बेंड द आर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सियन। ठीक हो गया। अच्छा जी, व्हेन ट्राइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और ट्राइसेप्स का ओरिजिन कहाँ पे था, पेक्टोरल गर्डल में, और इसका इंसर्शन कहाँ पे था, इस मूवेबल बोन में। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, दैट हेल्प इन द एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग ऑफ आर्म। सो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एक्सटेंशन, और इन मसल्स को हम कहते हैं एक्सटेंसर्स। सो याद रहेगा, बाइसेप्स आर फ्लेक्सर्स एंड ट्राइसेप्स आर एक्सटेंसर्स। बाइसेप्स की मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्सियन, और ट्राइसेप्स की मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें कि ड्यूरिंग बेंडिंग ऑफ आर्म बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कौन सा मसल रिलैक्स कर रहा है, ट्राइसेप। बट स्ट्रेटनिंग में क्या है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और बाइसेप रिलैक्स करता है। इस फिनोमेना को हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागनिज्म। ठीक है, होप you will get the concept of biceps and triceps work in an antagonistic pair. So both biceps and triceps make up an antagonistic pair of muscles. So आप इस डायग्राम में मूवमेंट में देख रहे होंगे
के पहले बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बाइसेप देखिए बेंडिंग में बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सटेंशन में ट्राइसेप. दिस इज बाइसेप, दिस इज ट्राइसेप. This biceps moves in bending, this tricep moves in the straightening of arm. So similar pairs working antagonistically across other joints. जिस तरह हमने तो एग्जांपल दी एल्बो जॉइंट में, नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, they all these muscles definitely works in antagonistically actions. So they provide almost all the movement of skeleton. ठीक है. Now next come another topic that are disorders of skeletal system. ठीक है, कौन कौन से हैं इसके disorders? Osteoporosis and arthritis. अब हम osteoporosis को देखते हैं कि osteoporosis क्या है. Osteoporosis is a bone disease and it is more common in old age people and very common in older women. और ये क्या है, इसमें होता क्या, देयर इज एन डिक्रीज डेंसिटी ऑफ बोन्स. और ये डेंसिटी ऑफ बोन्स डिक्रीज क्यों होती है, ठीक है, इसके कुछ रीजंस हैं, लाइक लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ड्यू टू द मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन मीन्स कि किसी भी की भी डेफिशिएंसी हो जाए, लाइक वो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है या विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की है, कैल्शियम की है, फॉस्फोरस की है, दैट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ बोन्स. अच्छा, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका काम होता है हर वक्त बैठे रहना और उनमें मूवमेंट कम होती है, जैसा आजकल हमारा जो टेक्नोलॉजी का एरा है, so in the era of technology physical movement बहुत कम होती है, that is why osteoporosis and osteoarthritis and different muscular issues, different bone issues, they do occur very commonly. And deficiency of estrogen hormone, ये हार्मोन फीमेल हार्मोन है और ओल्डर एज में क्यों ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो ड्यू टू द डिक्रीज सिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एन ओल्डर एज, deposition of minerals in the bone matrix also decreases, so that leads to the osteoporosis. इसको कहते हैं इसका भुरना, बोन्स का भुरना. अब आप डायग्राम में देखें, अगर नॉर्मल बोन्स में क्या है, नॉर्मल बोन्स में उसकी डेंसिटी क्या है, दे कॉम्पैक्ट है. और जैसी ये जो ओस्टियोपोरोसिस बोन है, इसके अंदर आप देखें बहुत पोर्स हैं, दे बिकम पोरस और दे कैन इजीली ब्रेकेबल. ठीक है, सो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली जहां पर सनलाइट बहुत कम है, वहां पर ऑस्टियोपोरोसिस का रेट या ऑस्टियोआर्थराइटिस का रेट बहुत ज्यादा है. Now next come is the arthritis. So arthritis क्या होता है? Arthritis means inflammation of joints. It is very common in old age people, especially in women. और arthritis के symptoms क्या हैं? So arthritis is very painful. So the pain and stiffness in joints. Stiffness means अकड़ा हुआ आ जाना, especially early morning stiffness, that indicates the arthritis. So pain and stiffness in the joints, particularly in the weight bearing joints. So weight bearing joints कौन कौन से हैं? Hip joint है, जिसे पूरी बॉडी का वेट होता है, ये ankle joint है. अब हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, पेन किलर्स हो सकते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं. सो दीज आर यूज फॉर द आर्थराइटिस. ठीक है, अब डायग्राम में देखें, आर्थराइटिस दे हैव स्वोलन जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स स्वेल हो गए हैं. जब हम आर्थराइटिस की टाइप्स को देख लेते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस: osteoarthritis, rheumatoid arthritis and gout. So osteo means bones. So osteoarthritis, this is due to the degeneration in the cartilage present at joint. Degeneration means कि वहां पर lubrication कम हो जाती है joint पे. Degeneration of cartilage. So cartilage क्या है, हमने bone और cartilage, so cartilage is the soft bone. ठीक है, so cartilage degeneration in the cartilage present at the joint. अब देखें कार्टिलेज क्या है, देखें ये दोनों बोन्स में
these two bones they have cartilage in the middle, और इसकी degeneration की वजह से जो arthritis होता है, ये है जी normal bone और ये है osteoarthritis. इसमें क्या है, cartilage में यहाँ पे lubricant कम हो जाता है, और in arthritis the fusion of bones at joint may occur, और ये इतना पेनफुल होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के बॉडी की मूवमेंट, जॉइंट्स की मूवमेंट टोटली खत्म हो जाती है. द जॉइंट्स बिकम टोटली इमूवेबल एंड इट बिकम सो पेनफुल. ठीक है. नेक्स्ट इज द रूमाटाइड आर्थराइटिस. अब रूमाटाइड आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स एट जॉइंट्स. अच्छा, जब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं कि रूमाटाइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, फटीग मींस थकावट, हर वक्त थकावट रहना, लो ग्रेड फीवर, पेन इन जॉइंट्स, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में कड़ाव होता है, टेम्परेचर होता है. ठीक है. अब आप देखें, एक नॉर्मल हैंड है और एक रूमाटाइड आर्थराइटिक हैंड है. अब नॉर्मल हैंड्स में एंड रूमाटाइड आर्थराइटिक हैंड में क्या है, मेम्ब्रेन्स की डिफरेंट, देखें अभी इसमें डिफरेंट मेम्ब्रेन्स है और इनमें इनमें स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है. सो दैट इज सो पेनफुल, स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग. पेन इंडिकेट और लो ग्रेड फीवर है, पेन है, जॉइंट्स में स्टिफनेस है, दैट ऑल्सो इंक्रीज द रूमाटाइड आर्थराइटिस. अच्छा जी, अब हम देखते हैं गाउट क्या है. गाउट होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की कम्युलेशन का इकट्ठा हो जाना. अब यूरिक एसिड कैसा होता है, जिस तरह सपोज वी आर टेकिंग प्रोटीन्स, वी आर टेकिंग इन प्रोटीन्स इन टू मच क्वांटिटी, so that leads to the uric acid accumulation in the movable joints. अच्छा, मोस्टली क्या होता है, आप डायग्राम में देखिए, मोस्टली क्या होगा, जिसको ये गाउट होगा, जिसको हम कहते हैं गैंठिया, उर्दू में हम इनको कहते हैं गैंठिया. यहाँ पर क्या होता है कि आप देखें, आप देख रहे हैं स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड जॉइंट, और ये क्यों है, यहाँ पर यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. एंड ये यूरिक एसिड मोस्टली टो में, मोस्टली फीट, योर जिसमें जो हाथ का है, जो थंब एरिया है या पाँव का थंब एरिया है, दैट इज swollen up due to the uric acid crystals accumulation, and it is really a painful disease, and so it generally attacks the two joints. Hopefully you got all the topics in detail. Thanks for watching. If you have any question regarding this lecture, please do ask me as many times as you want. So hopefully you will get the all the information about muscles and movement, antagonistic behavior, and disorders of skeletal system. So thanks for watching again. Okay, Allah Hafiz.